آمین. کتاب مقدس میں احترامہ یوحنا عارف کا مکاشفہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح کا ہے. لفظ مکاشفہ یونانی زبان کے لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کھلا ہوا بھید. ایسا بھید جس کے بارے میں ہمیں صرف کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی تک، متی کی انجیل سے لے کر یہودا کی خط تک ہمیں نشانات، عجائبات اور تمام طرح کی باتیں جو وہ گزری ہیں ان کے بارے میں اگر ہمیں علم ہوگا تو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. بابرکت کتاب ہے مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 30 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خود اس کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. اس کو لکھنے والا یوحنا عارف تھا جو خداوند یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے ایک رسول تھا. یہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے وہ کلیسیاؤں کے متعلق ہو رہی ہے. اور تیسری کلیسیا بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں سے اور بائبل مقدس کی جو چوتھی کلیسیا اور نئے عہد نامہ کی تیسری کلیسیا یہ کہلاتی ہے. پرگمن کلیسیا کے متعلق یہاں پر کلام کیا اور خداوند کے بازو کے تابعداری کے اندر رہتے ہوئے رسول یہاں پر لکھتے ہیں جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. تو یہاں پر کلیسیاؤں کا ذکر ہے لیکن بات صرف ایک کلیسیا سے کی جائے کیونکہ خداوند اس بات کے بارے میں بڑے فکر مند ہے کہ ماضی کی حالت اور مستقبل کی کلیسیاں کیا کارکردگی دکھا رہی ہیں. تو ان کے بارے میں خداوند نے بتایا. بعد میں ان کا اجر اور انعام یہاں پر لکھا ہے کہ میں ان کو پوشیدہ من میں سے پہلی بات دوں گا. پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز، اور من وہ کھانا ہے جو امت اسرائیل کو 40 سالہ بیابانی سفر کے اندر یہوہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا تھا. پھر ذکر آتا ہے سفید پتھر کا. سفید پتھر دنیاوی اور الہامی لحاظ سے برتری کا نشان ہے اور خداوند نے کہا میں تمہیں فاتحیابی عطا کروں گا. اور پھر آخر میں ذکر ہے کہ میں اس کو نیا نام بخشوں گا اور وہ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے جیسے آگے ہر رکنا جھکتا ہے. اور پھر آگے لکھا کہ جو کوئی اس کو پائے گا اس کا نام کتاب حیات کے اندر ملے گا. تو یہ خداوند نے ایک ٹرمینالوجی، ایک اجر، ایک موافق اور وہ کام جو کرنے پہلے بیان کیے گئے ان کے بعد جس کو کرے گا اس کے لیے حقیقی اجر لکھا ہوا ہمیں یہاں پر ملتا ہے. تو آج کی تھوڑی سی مناسبت سے جس موضوع پر ہم غور کریں گے وہ ہے پرگمن کی کلیسیا. سب جواب دیں ہمارا موضوع کیا ہے؟ کلیسیا میں پرگمن کی کلیسیا. تلفظ تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ نے اس کو یاد رکھنا. پرگمن یاد رکھیں. کوئی آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پرگمن. سب زور کے ساتھ جواب دو تاکہ آپ کو یاد ہو. پرگمن کی کلیسیا جو کہ بائبل مقدس کی چوتھی اور نئے عہد نامہ کی 7 کلیسیاؤں کی سیریز کا ہم نے آغاز کیا جس میں خداوند کی تابعداری کے اندر رہتے ہوئے 7 کلیسیاؤں کے تعارف اور کی کارکردگی کو جانیں گے کہ خداوند نے ان کے بارے میں کیا کلام کیا. تو اسی مناسبت سے 2 ملازم میں کہا ہمارے پاس ہوں کہ پہلی بات اس کلیسیا کا تعارف کیا ہے، کس نے اس کو وجود بخشا، ان کی کیا کارکردگی تھی، کس لحاظ سے اس زمانے میں یہ وجود کر رہا ہے، اور پھر آخر میں کیا ان کی خوبیاں ہیں، کیا ان کی خامیاں ہیں، کہاں پر خداوند کو خراج تحسین پیش کیا اور کہاں پر ان کو ملامت کی. بہتری سے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں. پرگمن پرانا نام ہے. پرگمن سے نکلا جس کا مطلب ہے برتن یعنی کار کے اندر جڑ جانا اور اپنے اندر یہ بڑا ہی ایک اہم مواد اور اہم شخصیت اور اہم حکومت کے اندر رکھتا ہے. ایک دفعہ خدا کے خادم کو تجربہ ہوا، ان کو بڑا شوق تھا کہ مجھے بھی باپ کا ظہور ہو. تو وہ اسی مناسبت سے ایک میٹنگ کے اندر پہنچے. پہلے بھی خادم تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ میری اور ترقی واقعہ ہو. وہاں پر جا کر اس نے دیکھا لوگ غیر زبانیں بول رہے ہیں، طرح طرح کے ایسے عجائبات دکھا رہے ہیں جو کہ دکھانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں. تو اس نے کہا خداوند مجھے بھی یہ طاقت چاہیے. تو وہاں پر 2 بھائیوں کو دیکھا جو کہ سب سے زیادہ الگ تھے اور سب سے زیادہ مصروف لگ رہے تھے اور دیکھنے میں بڑے روحانی اور گرم جوش تھے. تو وہ ان سے ملنے کے لیے گئے. پہلے شخص سے جب انہوں نے ملاقات کی تو وہ بھائی بڑے ہی نرم مزاج، محبت سے بڑے اور حلیم تھے اور ان کی تمام باتوں کا جواب دیا. جبکہ دوسری جگہ جو دوسرا آدمی تھا وہ نہایت گھمنڈی تھا اور اس کے اندر ہر محبت موجود نہیں تھی، وہ برداشت بھی نہیں کیا کرتا تھا. اب وہ آدمی بڑا پریشان ہوا. خداوند نے اسی وقت ان کو روایت دکھائی کہ ان کی شادی ایک ایسی خاتون کے ساتھ ہے جس کے بال کالے ہیں مگر ان کے بچے سنہرے بالوں والی خاتون میں سے ہیں. وہ آدمی زناکار تھا اور حرامکار تھا لیکن پھر بھی عجائبات نشانات اس کے اندر نظر آتے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ پاک کو ایسے شخص کے اندر کس طرح کام کرتا ہے. تو وہ خادم کے دل کے اندر یہی سوال آیا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. لیکن یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں بتایا اچھا درخت کبھی بھی برا پھلے نہیں لاتا اور نہ ہی برا درخت کبھی اچھا پھلے لا سکتا ہے. اچھے کام انسان کر سکتا ہے لیکن بعد میں اس کا پھل پیدا نہیں ہوگا. اور درختوں کی جڑوں پر بلایا رکھا ہوا ہے. جب وہ اسی بات کے میں مصروف تھے اپنے گھر گئے ایک الگ جگہ میں، وہاں پر جا کر انہوں نے بائبل مقدس رکھی اور ہوا کا جھونکا آیا اور عبرانیوں کا خط وہاں پر کھول کر ان کے سامنے آیا. وہاں کا ورد جب انہوں نے پڑھا تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پر کیا لکھا ہے. پھر دوبارہ بائبل کھولی اور کوئی ورد آیا. کیسی عجیب بات ہے کہ خدا کے ساتھ کلام کرتے اور انہوں نے اس حوالے کو پڑھا. رات کو وہ سو گئے. خواب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس نے رات بھر ایک بنجر زمین کو خریدا، اس پر محنت کی، ہل چلایا، ہر وہ کام کیا، اس کو پانی دیا، اس کی اپاشی کی، ہر طرح کا وہ کام کیا جو کسان اپنے کھیت کے لیے کرتا ہے. جب اس نے یہ سارا کام کر لیا صبح ہوتے ہی اس نے وہاں پر بیج کا چھٹا دیا اور بڑا خوش ہوا، محنت کی اور گھر چلا گیا. لیکن رات کے وقت کیا ہوا، ایک اور آدمی آیا کالے کپڑوں میں، اس نے آ کر بھی ایک اور بیج کا چھٹا دیا. تو 2 طرح کے بیج یہاں پر پیدا ہو رہے تھے اور کسی
को इसके बारे में मालूम नहीं था। सूरज निकलता है, दोनों को तवानाई मिलती है, दोनों को एक तरह का पानी मिलता है, लेकिन किसी को किसी की चीज की कोई पहचान नहीं थी कि कौन सा खालिसा और कौन सा ना खालिसा, कौन सा असली ज़ैतून है और कौन सा जंगली ज़ैतून है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। जब बढ़ गए फिर मालिक की नजर पड़ी, उसने देखा कि ये ऊंट कटाले नहीं है और यहाँ हमारे फल भी है जो मैंने के खुद भेजा था। अब वो परेशान था कि मैं क्या करूं। उसके नौकर ने कहा जनाब मुझे हुक्म दिया जाए कि मैं जाकर को काट। उसने कहा नहीं, अब इनको नहीं काटना, दोनों को बराबर कर दे दो। जब कटाई का वक्त आएगा तो जो भूसी है, जो ऊंट कटा रहे हैं, उनको कहां पर डाला जाएगा? आग में, ताकि इनको तबाह किया जाए। लेकिन जो फल है, जो अच्छी फसल है, वो मेरे पास रहेगी। अब खुदा के खातम को समझ आया इसका क्या मतलब था। जो खेत है वो ये दुनिया है। पहला बीज फेंकने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है और आज उसके नौकर खादम हम हैं। फिर दूसरी बात, जो रात को आया वो कौन था? काले कपड़ों में शैतान था। वो आज इंसानों के अंदर ऐसी ख्वाहिशात पता नहीं कहां से पैदा कर देता कि इंसान को काम करे, शरीर की मुखालफत करे, हुक्म को करे, हुक्मों को तोड़े, हर वो काम करे जो आपकी मर्जी के मुताबिक है। हम फजल के बता रहे यीशु यीशु जपते रहे, रात को सोने से पहले दुआ की, खुदा मुझे माफ कर, तू कौन और मैं कौन। और यही काम उस जमाने में हो रहा था। तो खुदा ने बताया दोनों के ऊपर पाप का वसा था, दोनों को खुदा ने सूरज की रोटी दी, दोनों को पानी दिया गया, लेकिन दोनों साथ रहे। फर्क ये था कि बेफल था, दूसरा फलदार था। तो अच्छा आदमी अपने फलों से पहचाना जाता है। फल की कलीसिया का भी यही हाल था और खुदा ने इसके बारे में कलाम किया। एशिया कोशिश के अंदर एक कलीसिया वजूद करता है, आसिया का इलाका था और मार्टिन ने इसको वजूद बच्चे लोग का पहला लीडर के लाया। ये उस जमाने का वक्त है जब 4वीं-5वीं सदी का आगाज हुआ। कंस्टेंटीन का जो दौरे सल्तनत है वहां पर बड़े जोर के साथ चल रहा था। सियासत और मजहब एक हो चुके थे और मसीहियत जो था उस जमाने में सियासी मजहब और मरकजी मजहब बन चुका था। पहले आप याद करेंगे जब इब्तिदाई कलीसिया ने सर उठाया था तो मसीहियों को मारा जाता था, इस कदर जुल्म किया जाता था, खवातीन के प्रस्तान काट दिए जाते थे, हमला खवातीन के बच्चों को निकाला जाता और उनको सूरों के आगे फेंक दिया जाता था, आरों से चीरा जाता था और नौजवान लड़के लड़कियों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, उनको कीलों के साथ झड़ दिया जाता था, शरीर पर और भूखे कुत्ते छोड़े जाते जो आदम की अंतड़ियां निकाल देते थे। तो इस तरह मसीहियों के ऊपर पहले जुल्म हुआ। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप हमें नजर आता है एक बादशाह जिसके बारे में बहुत सारी रिवायात पाई जाती है, जिसने ये कहा मैंने रात को एक ख्वाब देखा कि मेरे पास एक झंडा है, उस पर सलीब का निशान है, मैं जब हार रहा हूं लेकिन जब मेरे हाथ में झंडा है मैंने फतह अभी हासिल करना शुरू कर दी। रात को क्या है, बुत परस्तर सुबह उठ के कहता मैं मसीही हो गया। तो पहले मसीहियों को मारा जा रहा था, अब बाद में उल्टा हुआ कि लोग ये कहने लगे, बादशाह ने ये ऑर्डर दिया कि जो कोई मसीही नहीं होगा उसको मार दिया जाएगा। तो जो छुपी हुई कलीसियाएं थी वो सामने आगे उनके दिल के अंदर बड़ा एक जज्बा रल हो रहा है कि कोई बात नहीं, खुदा ने हमें आजादी बख्शी। लेकिन शैतान यहाँ पर एक बलि का बीज जल्द अज जल्द होने वाला था। पहले उसने मार पिटाई की तो लोग नहीं माने, अब उसने प्यार मोहब्बत और फजल का नाजायज फायदा उठाते हुए बाइबल मुकद्दस की तालीम के अंदर आमेजिश की और लोगों को गुमराह किया। जिस तरह फिर एक काउंसलर पेश हुई, जिस तरह लोगों ने आज ईद क़याम को छोड़ के क्रिसमस को और फिर ईद फसह को छोड़कर ईस्टर को, ये सारी बातें उस जमाने से चलती हैं। फिर तीन खुदावंद सबर और आज मसीह और गैर इमाम के सवाल करते हैं आपके तीन खुदा है, यहोवा भी खुदा है, यीशु भी खुदा है, बाप भी खुदा है। तो ये बिदअत बन जाती है। तस्लीस का मादा इस तरह से आया। खैर ये बड़ी बहस है, पिछले साल हम इसके बारे में जानते हैं कि खुदा की वहादत क्या है। तो इस जमाने के अंदर ये काम हुआ और कलीसियाएं उसके अंदर इस तरह धंसी गई दलदल के अंदर, उनको पता नहीं लगा। शैतान ने बड़े तरीके के साथ रात के वक्त आकर पूरा बीज फेंक दिया और खुदा ने दोनों को बढ़ाया, लेकिन एक वक्त आएगा तो उनको काटा जाएगा, बकरियों को और भेड़ों को अलग किया जाएगा। अब जो लीडर था वो मार्टिन था, जो कि नौजवान शख्स था और ना वो नौजवानी वो आलम है जहाँ पर इंसान को सिर्फ अपना नजर आता है, उसको किसी दूसरे आदमी की फिक्र नहीं होती। अब सब नौजवान हैं, इस अमल में से गुजर चुके हैं, लेकिन ये वो आदमी था जो कि जब फौज के अंदर दाखिला लेने के लिए गया, एक वक्त ये वापस आ रहा था तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक ऐसा भिखारी बैठा जो कि सर्दी से कपकपा रहा है, बड़ा ही परेशान है। किसी की नजर उस आदमी पर नहीं पड़ी। इस आदमी ने उस पर गौर किया, इसको उस पर तरस आया। इसने अपना कोट उतारा जो कि इकलौता इसके पास मौजूद था, अपनी तलवार निकाली क्योंकि ये फौज में था, उसके दो टुकड़े किए, एक उसको दिया, दूसरा अपने पास रखा और बगैर उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखकर अपनी राह को चल दिया। रात के वक्त रात के अंदर इसने रोया देखी, वो रोया क्या थी? रोया इसने ये देखी कि शख्स मेरे पास आया जिसका चेहरा आफताब की मानद चमक रहा है और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी है कि आज तक किसी धोबी ने इस तरह की पोशाक नहीं धोई। और अजीब बात ये कि उसके कांधों पर वही कपड़ा था जो वो भिखारी को देकर आया था और उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं, तुम उस भिखारी की नहीं मेरी मदद की।
हालेलुया। तो ये इसकी अजीब कॉलिंग थी, इसके अंदर मोहब्बत थी, इसके अंदर हलीमियत थी, इसके अंदर बर्दाश्त थी, माफी थी, ये फल था इसका। खुदा ने इसको कॉल किया। अब इसके हाथ से अजायबात, निशानात, मुख्तलिफ तरह की बातें मौजूद वजूद के अंदर आए। कलीसिया इसने कायम की, परगोन की, वहां पर इसको वजूद रखा। आवाज गात थी ये बुत परस्तों का, और यहाँ पर ना पता था, और ये वो वक्त चला जहाँ पर असली और नकली की पहचान करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बाइबल कितना करें जो भी है, बाइबल मुकद्दस उस जमाने में मौजूद नहीं थी, तो लोगों को इस बारे में बड़ी ही बुरी रवश आती थी कि हकीकी रहनुमा वहाँ किस तरह तलाश करें। कोई इस तरह की तालीम देता था, कोई छोटा मोटा काम करता या कोई मोर्चा करता, लोग उसके पीछे लग जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम मुझे करोगे या वो काम करोगे तभी तुम्हें दाखिला मिलेगा, बल्कि क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 25 की आयत, और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। तो सच्चाई को जानने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई कड़वी होगी, और कड़वी चीज को हमने हजम करना, जब पेट के अंदर जाएगी तो हमें शिफा देगी। दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है जो हमेशा मीठी हो, हमेशा ज्यादातर मेडिसिन कड़वी होती है, लेकिन वो क्या करती है, हमें शिफा देती है। इस तरह कलाम भी कड़वा, लेकिन हमें शिफा देता है। खैर मास्टर की बुलाहट इस तरह वजूद के अंदर आई, उसकी दुआया जिंदगी बहुत ज्यादा मजबूत थी। लेकिन आज का ईमानदार सिर्फ इतवार को चर्च जाने तक महदूद है, बाद में इसका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अपने मेहनत पर करने वाला हूं, मेरा उस आदमी के साथ ताल्लुक है, मैं ये करूंगा। अगर हम रिजल्ट के पीछे भागेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर हम राशि को पकड़ेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। अब इसने क्या किया कि ये उस गिरोने आदमी के पास मिलने के लिए गया जो मसीह को तंग किया करता, उसके साथ बातचीत करे। उसने अपने जो महल था बहुत बड़ा, उसका गेट बंद कर दिया, उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। इसने बगैर वहां पर तकरार किए, उनको पत्थर मारे, बुरा भला किए, घुटनों के बाद हुआ, वहां पर इसने दुआ करना शुरू किया, खुदावन के फरिश्ते ने इसके दरवाजा खोल दिया। अभी आगे गया, फिर बादशाह से मुलाकात, वो बिशप था, इससे मुलाकात करने के लिए नहीं आया, उसने मुंह फेर दिया, उसने कहा मैं इससे बात नहीं करनी। इसने गुस्सा नहीं किया। फिर घुटनों के बाद हुआ, फिर दुआ की, और फिर तख्त में से आग निकली। जब तख्त में से आग निकली, उसके पांव में गिरा, कहा हमें माफ कर दे। तो ये है दुआ का। क्या आज आपकी दुआ की जिंदगी ऐसी है कि जो शरीर है, जो शरीर है, जो बुरे लोग हैं, हमारी दुआ में इतनी पावर है। राष्ट्रवाद की दुआ से शहर तरक्की पाता है, सरफराजी पाता है। आज हमारी दुआएं सिर्फ यहाँ तक महदूद हो गई कि बास्केटबॉल की तरह, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई। आसमान पीतल का है, जमीन लोहे की है। दुआएं क्यों नहीं असर करती? क्योंकि जोश नहीं है। दानिएल 21 दिनों तक दुआ करता रहा, क्योंकि मौके ने उसके जवाब को रोके रखा था। इसी तरह जब आप नियत के साथ दुआ करते हैं, आपकी दुआ यहोवा के तख्त के पास पहुंचती है। लेकिन दुआ आने में टाइम इसलिए लगता है, बदरूहें आसमान के अंदर मौजूद है, वो नहीं आने देती कि आपका ईमान खराब हो। और बहुत सारे ईमानदार इस बात की पैरवी करते हैं, आप दोबारा गिर जाते हैं। खैर मास्टर की ये बात में यहाँ पर नजर आती है। 3 दफा इसने आदमियों को जिंदा किया, एक जो कि मर चुका था, एक नौजवान लड़का था जिस तरह अलीशा ने जिंदा किया, और एक आदमी को धनुष के साथ टांगा हुआ था, जिसने देखा उसकी आंखें के अंदर से इसको उतारा, उसको भूसा दिया, उसको गले से लगाया, दुआ की, और खुदा यीशु मसीह ने उसको जिंदगी दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद इंसान घमंडी हो जाता है, लेकिन ये घमंडी नहीं था। इसके अंदर मोहब्बत थी, इसके अंदर हलीमी, इसके अंदर बर्दाश्त थी, क्योंकि इसको ये मोहब्बत है खुदावन से मिली थी। इसने अपने आप को खाकी बनाया। एक दफा घुटपट पर तैयारी करने के जाने से पहले ये बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर रहा था, तो एक शख्स इसके पास गरीब आया और आकर कहता मेरे पास कपड़े नहीं, मुझे कपड़े चाहिए। काम ज्यादा मसरूफियत वाला था, तो उसने ये कहा कि मेरे डीकन से जाकर आप इस काम को पूरा करें। डीकन गरम मिजाज था, उसको झिड़क कर उन्होंने वापस भेज दिया। तो वापस आए, उन्होंने अपना वो सारा जरूरी काम छोड़ा, उनकी मदद की। खैर अब दोबारा यीशु मसीह उसके ख्वाब में नहीं आए, लेकिन इस काम के बाद जब वो कलाम की मुनादी करने की स्टेज पर पहुंचने आए, तो लोगों ने एक अजीब रोशनी उसके चौगिर्द देखी, जो खुदा का जलाल था। और इस खादिम के अंदर वो पावर थी कि जैसे मसले पर पांव रखा जाता था, बदरूहें चीखना शुरू हो जाती थी, क्योंकि ये पाक की पावर है, ये पाक का फल है, और फल परगमन की कलीसिया थी। और खुदावन ने इसको जोर बचा। और आज की सुबह हमारे लिए फ्रेश मैसेज हमें बताता है कि हमने किस तरह अपनी दुआएं जिंदगी, अपने अंदर मोहब्बत को, माफी को, हिलम को, परहेजगारी को, सेल्फ कंट्रोल को, इन बातों को रखना है। तो ये था इनका बुनियादी तौर पर एक सीधा सीधा ताल्लुक। अब इनकी कारकर्दगी को देखते हैं कि खुदावन ने इनके बारे में क्या किया। आइए पढ़ते हैं मकाश की किताब 2 बाब 12वीं आयत में इसका जिक्र है। और परगमन की कलीसिया की फरिश्ता को ये देख, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि आप इसका इंट्रोडक्शन सुने, बड़ा अजीब है। लिखा है जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। और तलवार का क्या मतलब है? कत्ल करना, इंसाफ करना, कि सब्जी काटना, इंसाफ करना, कत्ल करना, सजा देना। और ये तलवार का यहाँ पर मतलब है कलाम। पुराने वक्त 4 बाब 12वीं आयत के मुताबिक खुदा का कलाम हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बांध बांध कर कूदा में से हो गुजरता है, और आदमियों के ख्यालों को जांचता है, और उनके अमाल के मुताबिक उनको अजर देता है। वज़ीर यूहन्ना की इंजील के मुताबिक खुदा का जो कलाम है, इसी के मुताबिक इंसाफ किया जाएगा। आपकी कारकर्दगी को देखा जाएगा, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर देखा जाएगा कि आपने क्या कारकर्दगी की, इस कलाम के मुताबिक होगा। यीशु मसीह जज है, लेकिन जो वकील होगा हमारा, जो हमारा
मौका उस टाइम पेश करेगा हमारी मुखालफत में, वो खुदा का काम होगा और हमसे पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि ये काम हमारे लिए मनफी है, ये काम हमारे लिए मुस्बत है, इसको हमने किया तो हम बेहतर है, और ये काम हमने नहीं किया ये हमारे लिए बुरा है। आगे लिखा है, मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतबास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। खुदा ने यहाँ पर उस आवाज़गाह को, जिस तरह हमने आगाज के अंदर पढ़ा, बुत परस्तों की आवाज़गाह थी, मजहब जो वहाँ पर था, रवायती मसीहत बन चुका था, तो खुदा ने उसको शैतान के लोग नहीं कहा, शैतान की जगह नहीं कहा, बल्कि शैतान की तख्तगाह कहा, जहाँ पर शैतान बैठता है, जहाँ से सारा काम करता है। लेकिन वहाँ पर भी खुदावन का एक ईमानदार मौजूद था, जिसका नाम अभी पढ़ा गया, इसका नाम इंतबास है। लिखा है कि वो पहला शहीद था जिसने उस जमाने में अपने सर को खुदावन यीशु मसीह बादशाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकाया। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा कि ये हमारे बादशाह के सामने सर नहीं झुकाता, उन्होंने उसको कत्ल करने की कोशिश की, और कोशिश ही नहीं की बल्कि इसमें वो कामयाब हो गए। तो इस कलीसिया के अंदर दो तरह के पाप रूह के फल हमें नजर आते हैं। पहली बात, इनके पास परहेजगारी है, क्योंकि ये उस तख्तगाह के अंदर रहते हुए उनके कामों से किनारा कशी इख्तियार करते हैं। और दूसरी बात इनके अंदर क्या है, वफादारी है, ईमानदारी है, इन्होंने हर लिहाज से खुदा के कलाम को जाना है। लेकिन फिर अभी लिखा हुआ है, मुझे तुझसे चंद बातों की शिकायत है, और वो चंद बातें क्या है, इसलिए तेरे यहाँ बाल को बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी। तीन शख्सियत का यहाँ पर जिक्र है, पहली बलाम है, दूसरा बलक है, और तीसरा बनी इसराइल है। तीन तरह की शख्सियत, तीन तरह की कबीले, तीन तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनको जानते हैं कि ये कौन है, खुदावन ने क्यों इनका जिक्र यहाँ पर किया, क्योंकि खुदावन को ये शिकायत मुनासिब तौर पर नामंजूर ठहरी। अब बलाम ये वो आदमी था जिसको बलक बादशाह ने कॉल की। बलक जो था ये मोआब का बादशाह था, और मोआब जो है ये इसराइल का रिश्तेदार था। अब्राहम से पैदा हुआ इसहाक, और इसहाक से पैदा हुआ याकूब, और याकूब कहलाया इसराइल। अब जब इसराइल यानी कि अब्राहम कसदियों की ऊर से निकला था, तो उसके साथ उसका एक रिश्तेदार भी था जो कि उसका भतीजा था, उसका नाम लूत था। लूत से पैदा हुआ मोआब, और मोआब जो था ये वही था उनका बादशाह, ये खास तरह से एक रिश्तेदार थे। लेकिन मूसा ने यहाँ पर कासत भेजे और कहा कि हमें अपने मुल्क में से गुजरने की इजाजत दी जाए, ताकि हम यहाँ से गुजर सकें, और अगर किसी किस्म का कोई नुकसान होगा, हमारे चरिंद परिंद अगर कोई ऐसा काम करेंगे, कोई नुकसान होगा, हम उसका खमियाजा भुगतेंगे, तुझे नकदी भी अदा करेंगे, बस हमें यहाँ से गुजरने की इजाजत दी जाए। इसने कहा मैंने नहीं गुजरने देना, क्योंकि ये उन लोगों से डरता था। इसने कहा कि मिस्रियों का रास्ते आई, खुदा ने उनको तबाह किया, मासी के अंदर कौमों को मार कर आए हैं, कहीं मेरे पर लानत ना आ जाए। अब इसने अपने लिए एक झूठे खातन को बुलाया जिसका नाम बलाम है, और उसको रुपए पैसे का लालच दिया, और वो आता है। अब जब उसके पास आता है तो सबसे पहले खुदावन जिसके बाद कलाम करके उसको कहा था, इसने कासत भेजे और कहा कि जाओ जाकर उसको कहो कि मेरे पास आए, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है वो करे। और रुपए की थैली लेकर और कुछ मीठी मीठी बातें लेकर इसके पास आए। बलाम बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि जो कुछ खुदावन मेरे मुंह के अंदर रखेगा मैं वही कलाम करूंगा। अब जरा कान खोल के सुनिए कि खुदावन किस तरह कलाम करता है, किस तरह रुपया के अंदर बात करता है। ये बड़े पक्की बात है, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। नामी ग्रामी पर मैं गुफ्तगू से परहेज करें और कलाम को सुने, गुफ्तगू होती रहेगी, कलाम भी दोबारा आएगा। अगला जिक्र में यहाँ पर मिलता है, इसने क्या किया, इसने कहा मैं खुदावन से पूछ के बताऊंगा। खुदावन ने रात को कलाम किया, कहा कि तू उनके साथ ना जाना, ना उनकी बात को सुना। गिनती की किताब 22वां बाब 22वें बाब से लेकर 25वें बाब तक आप पढ़ेंगे, आपको इस कहानी का पूरे वाक़े का जिक्र मिलेगा। 24वें बाब में इसका इख्तिताम हुआ, 25वें बाब में इसका अजर लिखा हुआ है। अब जब बलाम ने ये कहा मैं खुदावन से पूछूंगा, तो खुदावन ने सख्ती के साथ मना किया, तू वहां पर है। आप जवाब दे सकते हैं, तू वहां पर है, कलीसिया मेरी बात सुन रही है, आप जा रहे हैं। बलाम को खुदावन ने कहा तू वहां पर है कि जाना। सब बात है, पीछे वाली खवातीन भी, क्या खुदावन को कहा तू जाना कि ना जाना, ना जाना। तो ये नहीं गया, इसने कहा खुदावन ने मुझे मना किया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, उसने दोबारा और अच्छे कासत और ज्यादा रुपए पैसे के साथ भेजते हुए को कहा जाओ जाकर उसको बुला के लाओ कि मैं तुम्हारे घर को अच्छी चीजों से भर दूंगा, एक अच्छा औदा भी दूंगा। अब जब खुदावन ने एक दफा के साथ कलाम करके इसको कह दिया कि तू ना जाना, अब इसको क्या जरूरत थी कि खुदावन के साथ दोबारा बात करता। उसने दोबारा रुपए पैसे को देखा, दोबारा उन चीजों को देखा, उस रुतबे को देखा, तो इसने इसके दिल में लालच आया, उसके दामन पर एक दाग लग गया। अब वो दाग मिट नहीं सकता था, और चूंकि इसकी आंखों
ऊपर लालच की पट्टी बंधी हुई थी, इसने उस दाग को नहीं देखा। तो खुदावन ने कहा मैं तुझे वो दाग दिखाऊंगा। जब खुदावन ने गुज़श्ता रात एक दफा तुझे मना किया कि तू ना जा, फिर तुम्हारा जब पूछ रहा मैं जाऊं कि ना जाऊं, है कि नहीं लालच? और रसूल बताते हैं कि जो लालच है वो बुत परस्ती के बराबर है, जो कि खुदा का सबसे बड़ा और जबरदस्त किस्म का हुक्म है। रूहानी ज़नाकारी ये कहलाती है। लेकिन फिर इसके दिल खोल आया, तो खुदावन ने अफसोस के साथ शर्मिंदा करने के उसको कहा जा तू उनके साथ जा, लेकिन जो कुछ मैं तेरे मुंह के अंदर रखूंगा तू वही करेगा। आज मेरे को इसी तरह रुपए पैसे की खातिर कलीसियाओं को बताया नहीं जाता, लोग करते हैं भाग जाएंगे हमारा क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो राशि है वो देने की कुदरत रखता है। हमें रुपए पैसे की वजह से खादमीन से किनारा करना है, जो कि बगैर अपनी मर्जी की तालीम दिए आ जाए आगे चापलूसी करके आप बड़े अच्छे हैं आप ये हैं, यीशु के साथ निकलवाना, सिर्फ मीठी मीठी बातें करके चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने साथ ले जाना है। यही शक्ल में यहाँ पर बलाम के जरिए से मिलती है। अब बलाम यहाँ से निकलता है और गधी पर सवार होता है जहन कस के, लेकिन रास्ते के अंदर इसकी गधी जो है एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। वो बड़ा परेशान होता है, उसका जो पाँव था वो दीवार के साथ पिचक जाता है, उसको चोट लगती है, उसको गुस्सा आता है, वो स्टिक पकड़ता है, जोर जोर से उसको मारने लग जाता है। 3 दफा ऐसे होता है। गधी बड़ी परेशान होती है कि मैं उसको किस तरह बताऊं कि मैं आगे नहीं जा सकती। आगे जाने की बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि अगर वो आगे जाती तो दोनों की मौत लिखी हुई थी। तो फिर खुदा ने गधी की जुबान को खोला और गधी ने उसको बताया, सुन मैं इतने साल से तेरे साथ सफर कर रही हूँ, क्या मैंने कभी तुझे इस तरह तंग किया? तो बलाम ने कहा नहीं। उसने कहा इसीलिए क्योंकि आगे खुदा का फरिश्ता 2 लाड़ी नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है, अगर मैं आगे गई तो तुझे भी मार देगा और मुझे भी मार देगा। फिर खुदा के फरिश्ता ने उसकी आंखें खोली और उसने उसको देखा, उसने झुककर उसको सजदा किया और माफी मांगी। उसने कहा जा शर्मिंदा तू हो गया। अब पता लगा कि खुदा किस तरह काम करता है। जब ये काम हुआ वो वहां पर जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक गधी ने जो एक ऐसा जानवर इसको बेवकूफ समझा जाता है, खुदा ने उसकी आंखों को खोला, उसको दिखाया, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। वो खाक पे से उठाकर अर्श पर बिठाता है और अर्श पे गिराकर खाक पर भी बिठा देता है। और गधा इल्म इलाहियात और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है गुनहगार शख्स को, बेवकूफ आदमी को जो बार बार गुनाह करता है उसकी तरफ इशारा होता है। लेकिन खुदा का शुक्र हो फरूश की किताब 13वां बाब 13वीं आयत के मुताबिक गधे का कफारा दिया जा सकता है और बर्रे के जरिए से इस काम को होता है। हमारी फसल भी गधे की मानी थी, हम भी बेवकूफ थे, गुनाह के तो मौजूद थे, लेकिन बर्रा ने अपना कफारा देकर हमें आजादी बख्शी है और हमारी आंखों को खोल दिया ताकि हम मौत को और जिंदगी को देख सके। बलाम न देख सका क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। हम यीशु मसीह को जानते हैं, हमें पता है ये मौत है और ये जिंदगी है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। वो वहां पर पहुंचा और उसने जाकर मसबा बनाया, कुर्बानी चढ़ाई। बलाम को कहा गया कि तू इनके लिए लानत कर, और बलाम इस काम के सरगर्म था। ऊंची जगह पर गया, जाकर उसने इसराइल के लिए लानत करना शुरू की। लेकिन हैरत की बात है कि खुदा ने उसके मुंह के अंदर बरकत को रख दिया। 3 दफा लानत करने के लिए गया और 3 दफा खुदा ने उसको बरकत दी। बलाम ने जब ये काम किया तो बड़ा परेशान हो गया, उसने अपने सर पर हाथ रख दिया और उसने ये क्या कर दिया? मैं तुझे इनको लानत करने के लिए बुलाया है, मगर तूने इनको 3 दफा बरकत दे दी तो बढ़ जाएंगे, मैं क्या करूंगा? तूने ऐसा क्यों किया? क्या यहाँ से वापस जाएगा? लेकिन बलाम ने फिर जवाब दिया, क्या मैंने तुझसे पहले ना कहा था कि जो कुछ खुदावन मेरे मुंह में रखेगा मैं वो ही करूंगा? अब आप समझ रहे हैं पाक रूह का ज़हूर किस तरह अल्लाह ने आगाज कर कहानी के अंदर जाना कि पाक रूह का जो बीज है वो सबकी जिंदगी में बोया जाता है, सबको वही कलाम सुनाया जाता है, लेकिन कईयों के अंदर करने जाने बोल दिए जाते हैं। तो खुदावन के रूह ने उसको शर्म दिलाने के लिए बताया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और इसके बाद खुदा ने अपनी कौम को 3 दफा बरकत दिलाई। फिर चौथी दफा जब इसने की वहां पर उसने यीशु मसीह के बारे में भी कह दिया कि यहूदा का सा कभी मौकूफ ना होगा, इसराइल में से एक कौम पर भूत निकलेगी। और यीशु मसीह की नबूवत भी इस बदकार आदमी की जुबान नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद था। जब पाक रूह आता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। अब जाते जाते भी ये वजीफा भी फैल गया। अब आप गौर सुनिए इसने क्या किया। जाने से पहले इसराइल को मदाद कर गया, हम तुमसे माफी मांगते हैं, हम तुम्हारे दोस्त अजीज हैं। शतीम के इलाका के अंदर इसराइली मौजूद है। 25वें बाब में इसका जिक्र है, कितनी किताब है। तो वहां के लोगों ने कहा, इसराइल ने कहा कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम कौन सा उनकी कुर्बानियां खाएंगे या बुतों के सामने सर झुकाएंगे? चलो प्यार मोहब्बत है, खुदा ने सबको माफ किया, हम चलते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्होंने नाच रंग शुरू कर दिया, अपने बुतों की कुर्बानी को बुलाई और खवातीन ने उनको मजबूर किया कि हमारे बुतों के सामने सर झुकाए। वो उनके सामने आए, रक्स किया, बहन की इख्तियार की, वो जिनसी लज्जतों के अंदर आए। उन्होंने वहां से खवातीन को दिया, उनको अपनी बीवियां बनाए। अब मखलूक नस्ल फिर से पैदा होगी, एक तरफ गधा दूसरी तरफ घोड़ी है, तो फजूल तरह की ऐसी नस्ल पैदा होगी जो कि खुदा की पाक कौम नाम के रहती। जंगली सुकून पैदा हो गया, असली सुकून खत्म होना शुरू हो गया। फिर यहाँ पर खुदा का खाना में खुदा फिनाल उसने जाकर नेज़े के जरिए से खातून को और एक इसराइली मर्द को कत्ल किया, क्योंकि वो
ने बलाम की तालीम की पैरवी की, बलाम जो उनको देकर गया था, इसलिए परगुमन कलीसिया को भी खुदावन ने कहा कि वो बलाम की तालीम मानते हैं, पूरी तालीम की पैरवी करते हैं। और लिखा है वहां पर 24,000 आदमी वबा के जरिया से मारे गए, इसलिए कि खुदा की कलाम को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छे भले अपनी राह पर चल, लेकिन जब बलाम ने आकर झूठी तालीम दी, इस तरह ने आकर जब आपको भटकाते हैं, आप रूल देते हैं, चापलूसी करते हैं, खाने पीने की बातें करते हैं, तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं, फिर ऐसे की बात होती है और जाते हैं, इंजॉय तो कर लेते हैं, लेकिन इस बात में 24,000 आदमी भी मारे गए। आए बातों को छोड़े खुदा ने यीशु मसीह की तरफ रुख करे। दूसरी बात जहाँ पर लिखी हुई है कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। दो बातें हैं, हरामकारी और कुर्बानियां खाएं। कुर्बानियां खाने का मतलब ये नहीं कि गुज़श्ता यहाँ में जो ईद गुजरी है कि गोश्त का भरना, बल्कि कुर्बानी खाने का मतलब लिटरली तौर पर यह है बुतों के सामने सर झुकाना, रूहानी सलामकारी करना। मैं यीशु का पल्ला भी पकड़ा हुआ, बाबे के पास भी जाता हूँ, व्यवहार को भी सलाम करता हूँ, पीरों की भी पैरवी करता हूँ, दागा तमीज मैंने छोड़ा नहीं है, मैं चर्च भी जाता हूँ, हर वो बात करो जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। माफ मैंने करना नहीं है, दुआ कुर्बानी में मैंने रोज कहना है माफ मुझे माफ कर, इस तरह हमने अपने कर्मचारियों को माफ किया। मोहब्बत मैंने रखी नहीं है, कर्ज मैंने माफ नहीं कर रहा, सूद पर पैसा लेना, सूद पर पैसा लेना, रूहानी सलामकारी करनी है, और फिर भी मैंने ये कहना मैंने तो कुछ किया नहीं है, सब कुछ बेस्ट है, आई एम चैंपियन। लेकिन यीशु जी ने कहा जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे अपने आप को छोटा करे, नौकर बनाए, बच्चे की मान बने, इस बादशाह को कबूल करे, वो ही दाखिल होगा। रूहानी सलामकारी या रूहानी हरामकारी। और रसूल कहते हैं जिस तरह एक कस्बी के पास जाकर अपने जिस्म को शेयर करता है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बसा हुआ है, तो बस जो कोई खुदा के रूह को, खुदा के मक़दस को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। तो यह है कुर्बानियां खाना और हरामकारी करना। गुज़श्ता के अंदर बहुत सारे ऐसे दिन गुजरे जिनके अंदर लोगों ने अपने सत्य अपनी चीजों को पेश किया, गैर मामले और पुराना मसीह भागे गए, वहां पर हालांकि उनका हक नहीं था, गए जाकर हमने फ्रिजें भरनी है, आटे की मटकियां भरी, क्या हमारा खुदा हमें खाने के लिए खाना नहीं देता? क्या उसने इस्राएल को बिया पानी के अंदर 40 साल मन नहीं खिलाया? क्या उन्होंने को गोश्त नहीं दिया? लोग फिर भी जरा के लालच के लिए एक वक्त के खाने के लिए अपने ईमान का कत्ल कर देते। बहुत भाषा कहता है खाना वाले स्वाद ले खाने चक्कर में ना हमें तो एक भी दिया, ये हमारी तबीयत है, हमारी मानी खावरी जिनके बारे में कलाम करता है गले पर छुड़ाना। जब तू जाए उसके पास इंसान की किताब में नमून बादशाह लिखते हैं, जब तू हाकिम के पास जाए अपने गले पर छुड़ा रख, क्योंकि वो तेरे एक एक नवाले को गिनता है। जब तूने खाया तो उसके गुनाह में शामिल हुआ, जो कुछ उस पर आएगा तुझ पर भी आएगा। इसराइलियों ने ये किया, वो खवातीन के पास गए, उनके बुतों के पास गए, हर वो काम के जो खुदा ने मना किया, तो फिर 24,000 आदमी मारे गए। तो खुदा हमें भी यही बताता है कि हम तौबा करना या भी हासिल करना, कि मैं उसको पता यह भी अता दूंगा, क्योंकि तूने मेरे साथ दिल लगाया है, इसलिए मैं भी तुझे फरामोश नहीं करूंगा। और तीसरी बात, तुझे नया नाम दिया जाएगा। नया नाम जो है जलाल का हकदार जो आदमी होगा, जो उसकी बात को मानेगा, जो उस पर ईमान रखेगा, उसकी बात को सुनेगा, उसी का नाम किताब हयात में दर्ज किया जाएगा, उसी को जलाल का हकदारी का ताज अता किया जाएगा। असल कलाम हम सबों के लिए कलीसिया खुदा हमसे ये कलाम करता है, जिसके कान हो कि वो सुने। चाहे तेरे पास बलाम की तालीम है, चाहे तू जिस बात को मानता है, कुर्बानियां करता है, हरामखारी करता है, राशन लेता है, पीरों के पास जाता है, फकीरों के पास जाता है, हर तरह का वो काम करता है जो गैर काम करती हैं, फजूल रस्में करता है, मैं तुझे आज भी ये बताना चाहता हूँ, तौबा कर ले, वापस आ जा, वरना जल्द ना कर, देर नहीं, जल्द ना कर। तेरे पास अपने मुंह की तलवार से तेरा मुकाबला करूंगा, तुझे जवाब दूंगा। मैंने तेरी खातिर फिदिया दिया है ताकि तुझे मारना पड़े, तुझे सजा ना उठानी पड़े, मुसीबतें आजमाइशें आएंगी, ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन तू वापस आ, आए अपनी दुआएं फजल के तख्त के पास यहोवा तआला के सामने पेश करे। वो तक यहाँ पर हर घंटे आग जलती रहती है, यहाँ पर 24 बुजुर्ग उसको सजदा करने के लिए मौजूद है, फरिश्तेगान मौजूद है, सराफीम मौजूद है, जिब्राइल मौजूद है, मिकाईल मौजूद है, उसकी सताइश करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है हम उसके साथ चलने वाले बन सके। हासिल कलाम कलीसिया आए, अपनी बुरी राह को छोड़े, तौबा करें, क्योंकि खुदावंद हमसे मोहब्बत रखता है और उसने हमसे उस वक्त मोहब्बत की जब हम ऐन गुनहगार थे, ताकि उसके मार और कोड़े खाने की वसीला से हम सब लोग शिफा पाए, जिंदगी पाए और कसरत की पाए। छोड़ नहीं आता पाए और कसरत से पाए। सारा ट्रिपल में बात कर लिखा हुआ है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, खुदावंद का वादा किस पर जाहिर हुआ, तो भी वो खुश जमीन से मोहब्बत की ईमान फूट निकला है। और जब हम उस पर नजर करते हैं, कुछ उसको जवाब नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। वो आदमियों में हकीरों मजदूर मर्द कमनार रानी का आशना था, तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसको खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा।
کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم شفا پائے، ہم زندگی پائے. جس طرح بھیڑ اپنے ذبح کرنے والوں کے سامنے بے زبان رہتا ہے، تعلق کرنے والوں کے سامنے بڑا بھی، اسی طرح وہ بے زبان تھا. وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا، برا بھلا کہنے والوں کو جواب نہ دیتا تھا. آنے والے اپنے اندر برداشت کو پیدا کرے، واپس آ جائے، وہ کلیسیا بن جائے جو پاک ہے. ہماری دلہن یسوع مسیح کے ساتھ جائے گی جو زناگار بن چکی ہے، غیر مردوں کے پیچھے جا چکی ہے. اس کا نہ کچھ حصہ ہے نہ کچھ پکڑا ہے. چلیے کسی کیمپ چلے گئے. ہمارا موضوع کیا تھا؟ ہمارا موضوع کیا تھا؟ برگمن کی کلیسیا. دو پہلی بات ہمارے پاس سے، پہلی بات اس کا تعارف ہونے جانا، دوسری بات اس کی کارکردگی. تعارف کے اندر لے جانا، اس زمانے میں خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. پانی پی لیا تھا، کھانا بھی کھایا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا. پھر ہم نے ان کے ذکر کے بارے میں جانا، مارچ اس کی دعائیں زندگی کس قدر پاورفل تھی. 3 دفعہ اس نے مردے کو زندہ کیا، 3 دفعہ دعا کے ذریعہ سے جو شریر لوگ تھے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. پھر ہم نے جانا کہ کارکردگی کیا تھی. 2 بات ان کے پھل کے اندر موجود تھے، پرہیزگاری بھی تھی اور وفاداری بھی تھی. لیکن پھر بھی چند باتوں سے یہ مار کھا گئے جو کہ کیا ہے؟ بلعام کی تعلیم ہے، بتوں کی قربانیاں کھانا، خرابکاری کرنا اور آخر میں نکیلیوں کی تعلیم کی پیروی کرنا جو کہ ان کے درمیج بویا جا چکا تھا. آئیں کلیسیا اس بات پر غور کرے، ابتدائی تفسیر کو یاد رکھے. ہر جگہ سے کلام مقدس کی کامیاب کو چھت کے ذریعہ سے 100% گارنٹی کے ساتھ سچائی کے ساتھ ملے گی. لیکن بعد میں جب ہم باہر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تو شیطان آپ کو برے بیج کا چھٹا دے دیتا ہے. اس بیج کو اپنے اندر سے نکالیں، اس بیج کو اپنے اندر سے اس وقت نکالنا مناسب اور کامیاب ہوگا جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ لپٹ جائیں گے. اس بات پر غور کریں. رب العالمین اس پہ آپ سے بڑی فضل کرے کہ آج کے پیغام کو سننے سمجھنے کے ساتھ ہم سب لوگ صبر کریں اور وہ ہمارا نام کتاب حیات میں درج کرے. خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. بولے آپ رب العالمین. ہاللویا. سارے سب لوگ اپنے سر جھکائیں گے، سارے سب لوگ اپنے سر جھکائیں گے. خدا ان کے حضور کو محسوس کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی کے ساتھ، سستی کو اتار کر پورے اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ دعا کریں گے دلوں کے اندر کہ خداوند جو میری رہنمائی کے لیے مجھے روحانی کھانا عطا کیا گیا ہے، یہ